خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. جناب مولانا عمران بشیر صاحب، ڈاکٹر محمد رضا دودانی صاحب، مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں. اگر اجازت دیں، کل وہ آج بھی ایک آئے تھے، ایک خصوصی ایک اسپیشل ایک چائلڈ آئے تھے ملنے کے لیے، بڑی محبت ان کی، ہم ملے ان سے. اور تو کل بھی ایک بچی آئی تھی ملنے کے لیے اسپیشل، اپنی والدہ کے ساتھ ہیں. ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ بہت عرصے سے ملنا چاہتی تھی، تو وہ بچی سوال بھی کرنا چاہتی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا سوال ریکارڈ کروا دیجیے، ہم علماء سے پوچھ لیتے ہیں. تو اجازت میں وہ سوال میں پلے کرتا ہوں، اس پہ جواب لیں. چلائیں جی، سوال چلائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے علماء کرام سے سوال کرنا تھا کہ اسپیشل جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ کاپیوں پہ جو اللہم کا نام لکھا ہوتا ہے انہیں مٹا کے یا پینسل سے کٹ کر کے ضائع کیا جا سکتا ہے. تو کیا میں جو پیپر پہ آیتیں لکھی ہوئی الگ نام لکھتی ہوں ان کو بھی انک سے صاف کر کے ضائع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا، وہ یہ چونکہ میں نے ان کی والدہ سے پوچھ بھی لیا تھا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں، میں نے کہا کہ آپ اپنے انداز میں ریکارڈ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو بتا. تو ایک تو وہ انہوں نے نا یہ پوچھا کہ بھائی آپ علماء سے پوچھ کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اسپیشل بچوں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ مطلب کیوں میں باقیوں کی طرح نہیں ہوں بظاہر، اس کی کیا. باقی تو پیچھے تو پینٹنگز آپ دیکھے تھے نا، ان کی والدہ نے بتایا کہ کوئی بھی، یعنی وہ ان کی والدہ کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ بیٹا یہ کھاتی بھی میرے ہاتھ سے، خود کھانا بھی نہیں کھا سکتی، لیکن پینٹنگ یہ ساری ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور کتنی پرفیکشن کے ساتھ بنی ہوئی ہے، وہ سے اچھی بنی ہوئی ہے، باقاعدہ بڑی اچھی. ایسا لگ رہا ہے کوئی پروفیشنل. ہاں، یعنی ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے وہ کہنے لگی کہ مجھے وہ کینوس یا جو بھی کہتے ہیں لا کے دیں. تو میں نے ان کی والدہ کے الفاظ ہو رہا ہوں، ان کی والدہ کے، میں نے کہا کہ ایک نئی مصیبت اب کیا ہے، اب کلر خراب کرے گی اور کپڑے خراب. اس کے بعد اس نے بنانا شروع کیا. تو لیکن وہ اللہ، یہ دیکھیں اس پیچھے جا رہی ہے پینٹنگ، اس نے بچی نے خود بنائی ہوئی ہے، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بنائی. تو یہ پوچھ رہی ہے کہ پینٹنگ کرتے وقت میں اللہ کا نام لکھتی ہوں تو بعد میں اگر اسے مٹانا ہو، یعنی وہی اگر اس کو اس پیپر کو کہیں ضائع کرنا ہو یا کچھ بھی، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے. تو میرا خیال ہے ویسے بطور مجموعی بھی ایک موضوع بھی ہے اور بچی بھی بہت خوش ہوگی. تو اگر اسی پہ ہم بات کر لیں، اگر پہلے آپ کہیے عمران بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. ساری کائنات اس خالق کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، جسے چاہے دونوں چیزیں، جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، ممکن ہے تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہو. اچھا. ایک بزرگ کے پاس ایسے ہی معذور بچہ پیدا ہو گیا، تو آ کے کسی نے تسلی دی کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے. کہیے تو میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب نے میری جنت دنیا میں میرے پاس بھیج دی ہے. اللہ ان اللہ مع الصابرین. بخاری کی روایت ہے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ اللہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ضعفاء کی وجہ سے تمہاری نصرت بھی فرماتا ہے، تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. تو ایسے بچوں کی خدمت کرنا جو بھی کر رہے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن ایسے بچوں کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائیں گے کہ اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. داؤد صاحب آپ بھی سے فرمائے گا، اور یہ بھی کہ آپ پیرنٹس کو یہ انکریج کریں گے کہ بالکل کسی بھی طور پہ میں کیا لفظ استعمال کروں، مطلب ایک کمتری کا کوئی احساس نہ لانے دیں، اس سینس میں کہ کبھی سوشل گیدرنگ میں جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے، کسی تقریب میں جانا ہے، میلاد میں جانا ہے، محفل میں جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، لے کر جائیں. کبھی یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، بالکل آپ لے کر جائیں. اور کوئی اس کو، یعنی تاکہ بچے میں بھی ایک کانفیڈنس رہے اور آپ یہ سوچ کر جائیں کہ اس میں ایوری تھنگ از فائن اباؤٹ اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون پرفیکٹ ہے؟ ہم سب واہ واہ اسپیشل ہیں، واہ ان اے وے، ون وے اور دا ادر، ہم سبھی اسپیشل کیا ہیں. بات ہے. ابھی آپ غور کیجئے کہ آپ نے چشمے نہیں پہنے ہوئے، ہم نے چشمے پہنے ہوئے، صحیح. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کمزوری تو آ گئی. اگر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کسی کا قد چھوٹا رہ گیا، کسی کا قد اونچا ہے، کوئی بہت حسین و جمیل ہے، کوئی ایوریج صورت والا ہے. اسی طریقے سے آپ جنس کے اندر دیکھیں، بعض افراد نوع کے اعتبار سے مشترک ہوتے ہیں. یہ پتھر پروردگار عالم نے بنایا، اس کو انسان نہیں بنایا، ہم کو پتھر نہیں بنایا. اور پتھروں کے اندر بھی ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ تنوع ہے، اس کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے. بے شک
इंसानी जिस्म के अंदर कोई कमी रह जाए, ये मेडिकल साइंस के लिए भी एक चैलेंज है कि जिसके ज़रिए से वो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करे। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी आसमान और ज़मीन के दरमियान है तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया है। तो इंसान उनके ज़रिए से इन चीज़ों की खोज भी लगाता है, डिस्कवरी भी करता है और उसके नतीजे में बेहतर नताइज भी मिलते हैं। ये सब अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर ये बच्ची या कोई दूसरी, उनकी जो कमी है वो रूटीन से कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम नोटिस ज़्यादा करते हैं और उसको भी इस बात का एहसास होता है। हम उड़ नहीं सकते, हम इस बात की तरफ तवज्जो भी नहीं करते। चिड़िया उड़ रही है, हम उस तरीके से समंदर के अंदर तैर नहीं सकते, मगर मछली तैर रही है, मगर हमें कभी एहसास भी नहीं होता है। इसी तरीके से वो बहुत सारी बातें हैं कि जो मुमकिन है कि इस बच्ची को या दूसरे बच्चों को अपने उस रूटीन के अंदर एडजस्ट हो जाने के बाद उनकी तवज्जो बहुत कम रहती है, लेकिन बहरहाल एक कमी तो रह गई। अब उस कमी के बाद उनको उस पर डिग्रेड करना ये माशरे की तरफ से ज़्यादती होगी। यानी उनको अपनी किसी तकरीब में ना ले जाना सिर्फ इस वजह से कि ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, और वो अलग ऐसा दिखना होगा कि जो बज़ाहिर किसी के जहन में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकता है, थॉट ले आ सकता है। ये याद रखें। मैं इस बच्ची की सेहत के लिए भी दुआ गूँ, परवरदिगार आलम इन समय तमाम ऐसे बच्चे कि जिनको इस तरह का कोई भी इशू है उनको परवरदिगार आलम सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। और मैं इनके घर वालों से कहूँगा कि जहाँ इन बच्चों का एक इम्तिहान है ना, उसी की तरह उनका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। वाजिबात के बाद वो ये समझ लें, अपनी वाजिब नमाज़ें, रोज़े, वाजिब हज अगर है तो वो कर लिया, उसके बाद वो समझ लें कि उनकी सारी मुस्तहब इबादतें ये हैं। उनके सारे जो मुस्तहबात हैं, नवाफिल हैं, वो सब के सब ये हैं। अगर उनको लगता है कि मिसाल के तौर पर इसमें और उसमें हमें तरजीह देनी पड़ेगी, हमारी कुछ मुस्तहब नमाज़ें रह जाती है, नहीं, आप परेशान ना हो। परवर जो अभी इन्होंने कहा ना कि जन्नत दे दी, यानी आप समझिए, आप ज़रा गौर कीजिए, जितने भी आम इंसान हैं उनके बारे में हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। इन बच्चों के बारे में हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं ये जहन्नम में नहीं जाएंगे। ओह गॉड, हम पूरे इत्मीनान के साथ, मुकल्लफ ही नहीं किया परवरदिगार ने, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। खुदा ने अगर गुंजाइश नहीं दी तो खुदा ने जिम्मेदार भी नहीं बनाया। आप देखिए कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी आंखों की रेंज है कहीं तक देखने की, तो उससे आगे का मुतालबा आपसे नहीं किया जाएगा। मुझे नजर इतना आ रहा है, वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से इन बच्चों को अगर परवरदिगार ने कुछ वो क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ के जो आम तौर पर हमें नॉर्मल बींग्स के अंदर नज़र आती हैं कुछ कम है, तो उसी एतबार से खुदा ने जिम्मेदारियाँ भी उनके ऊपर वो वाली नहीं डाली। क्या बात है। क़िबला मुफ्ती आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत बात की रज़ा भाई ने भी, इमरान भाई ने भी। देखें, सबसे पहले तो इनके वालिदैन को सलाम है। ये प्रैक्टिकल ऐसे बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, उनकी परवरिश करना, एक तरफ आजमाइश होती है, मेहनत होती है, और दूसरी तरफ जो है वो मतलब ये थोड़ी सी अपने बच्चों को देखकर थोड़ा सा डिसऑर्डर देखकर भी जो है वो आदमी ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके वालिदैन को हौसला दिया, हिम्मत दी, और मैंने जब सवाल करते हुए सुना, उनके काम को देखा, पेंटिंग को देखा, तो ऐसा लगता है इनके वालिदैन ने बहुत अच्छी तरबियत। जी बिल्कुल ऐसे, उनकी वालिदा बहुत प्राउडली लेके आए और बड़ा अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। दो चीज़ें याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की कई शानें हैं, उनमें से एक ये है कि वो हकीम है, दूसरा ये कि वो आदिल है। वो अपनी तख्लीक के अंदर किसी को कम किसी को ज़्यादा अगर रखता है तो वो उसकी हिकमत है कि क्यों रखता है, किस लिए नहीं रखता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कॉन्टेक्स्ट में हज़रत मूसा और खिज़र का वाक़या भी पेश किया, जिसमें जो आलम अमर के जो मामलात थे उसको थोड़ा सा खोल दिया, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई चीज़ ले रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, तो वो क्यों ले रहा है, क्यों दे रहा है। बज़ाहिर लग रहा था कि वो कश्ती का नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत में फ़ायदा हो रहा था। बज़ाहिर लगता है कि वो पेरेंट्स के लिए एक आजमाइश थी बच्चे का जाना, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो उनके लिए एक इनाम था। इसी तरह बज़ाहिर लग रहा था ये 3 जो आजमाइशें हुई थी, दीवार की रिपेयरिंग वाला मामला, तो ये अल्लाह ताला की इसमें पता चलता है कि कितनी बड़ी हिकमतें होती हैं पिन्हा अल्लाह के हर काम में। फ़ैलुल हकीमी ला यखलु अनिल हिकमत। एक आम अक्लमंद शख्स का काम जब हिकमत से खाली नहीं होता, तो वो जो दानाए कुल है, वो जो समझ लें कि सारे हकीमों से भी बढ़ के हिकमत रखता है, अहकमुल हाकिमीन है, तो यकीनन उसकी। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला आदिल है, तो उसके अदल का तकाजा ये है कि जिसको जो नेमत दी है और किसी को नहीं दी है, तो बरोज़े क़यामत उसको कॉम्पनसेट करेगा, दुनिया में भी करेगा। यानी उसकी कोई ऐसी चीज़
ज़्यादा फास्ट हो जाती है बनिस्बत दूसरी के, अगर एक जगह से कमज़ोरी होती है दूसरी जगह से। यानी ये तस्वीरें बच्ची ने जो बनाई ये मैं नहीं बना सकता, हम इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह ने उसको दूसरी तरफ से जो है वो सलाहियत दी। क्या बात है। फिर बरोज़े क़यामत, जैसे रज़ा भाई ने कहा कन्फर्मली वो तो जन्नती, उनके माँ बाप भी कोई जन्नती। छोटी बात है कोई, यानी इससे और बड़ी बात पता ही नहीं क्या है? इस बच्ची की वजह से, इस बच्ची की वजह से कितने लोग, आज हमें मौका मिला अप्रिशिएट करने का, उनके बारे में कहने का, कितने लोग उनसे के रिलेटिव होंगे जो उनकी खिदमत करते होंगे, वो सब जन्नत में जा रहे वाह वाह, होंगे क्या इस एक वजह से। क्या कहना है मुफ्ती साहब इख्तितामी गुफ्तगू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तीनों बुज़ुर्गों ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए कुरान करीम में एक बात इरशाद फरमाई कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वो जैसे चाहता है सूरत बनाता है, वाह वाह वाह, और वो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। दूसरे मकाम पर ये फरमाए कि फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़ा सुम्मा मिन अलक़ा सुम्मा मिन मुद्ग़ा गैर मुख़ल्लक़ा व मुख़ल्लक़ा। अल्लाहु अकबर। मुख़ल्लक़ा और गैर मुख़ल्लक़ा फरमाया कि उस पानी की बूंद को हम खून की फटक बनाते हैं, फिर उसे गोश्त का लोथड़ा बनाते हैं, उसके बाद चाहे तो उसे वहीं ज़ाया फरमा दे, ना बनाए सूरत ना बनाए, चाहे तो सूरत बना दे जैसी बना दे। तो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो जिसे जिस तरह अता फरमाना चाहे अता फरमा सकता है। अब रही ये बात कि किसी में कमी कुछ रह जाती है, अच्छा वो हम समझते हैं कमी है, जी जी जी, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से एक सलाहियत लेता है ना, उसे बाकी इतनी सलाहियतें देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरे ARYQ TV में एक कॉलर है, मुस्तफ़ा नाम है उसका, बच्चे का, कराची में रहायशी है, कहीं से उसने रब्ता किया। आप यकीन करें कि बोल वो नहीं सकता, और व्हील चेयर पर यहाँ मिलने के लिए मेरे पास आया था। उसने मुझे एक तोहफ़ा दिया, ये इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना, ये दिया। आप यकीन करें मैं सोच भी नहीं सकता, उसने कहा मैंने खुद बनाया है। और याद रहे कि वो कुरान करीम जब मुझे सुनाने के लिए फ़ोन करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान शरीफ पढ़ने पर मतलब माइल हुआ, और अब इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, बातचीत उस तरीके से नहीं कर सकता, कुरान शरीफ पढ़ लेता है। इसी तरीके से मैं कई नाबीनों को जानता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बिनाई ली, लेकिन उनका हाफजा इतना तेज़ है, इतना तेज़ है कि 10 आम बंदों का हाफजा भी इतना नहीं होगा। वो कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते तो ऐसा करते हैं कि कभी उनको भूलता नहीं है, फर सुना देते हैं। तो इसी तरीके से ये बच्ची जब सामने आई है, पहली बात कि वालिदैन को अप्रिशिएट मैं करूँगा, इतनी प्यारी तरबियत, इतनी अच्छी तरबियत, और सबसे बढ़कर ये है कि हमसे नमाज का पूछा जाएगा, रोज़ों का पूछा जाएगा, ये काम किया नहीं किया, एक एक ज़र्रे का हिसाब होगा, एक एक अमल का हिसाब होगा, लेकिन यहाँ पर कोई हिसाब ही नहीं है, बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत है। अब मैं आपसे कहूँ कि वसीम भाई मेरा सब कुछ ले लें और मुझे श्योरिटी दे दें कि आप जन्नती हैं, ठीक है, तो बुरा सौदा तो है ही नहीं ना, बुरा सौदा नहीं है। आप दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, सकती है श्योरिटी, हम गुमान कर सकते हैं, अच्छा लेकिन श्योरिटी तो नहीं मिल सकती, यकीनी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ यकीनी तौर पर जन्नती है। अच्छा क्या पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में इनके वालिदैन को कितना रिस्क अता फरमा रहा हो, क्या पता। और सबसे बढ़कर ये कि ये बच्ची जन्नत में अकेली नहीं जाएगी, ये वालिदैन को खींच कर लेकर जाएगी इंशाल्लाह। क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। मेरा ज़ाविया बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ इस गुफ्तगू के बाद, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। और क्या, और ऐसी बाज़ार है, बहुत सारी और मिसालें हैं। रेहान आज़मी साहब को हम जानते हैं, शायर अहले बैत, नोहा खानी, नोहा लिखते थे। एक तो ये कि वो ये नहीं है आंखों देखी बात है, कोई सुनी सुनाई बात ही नहीं है कोई, तो बस उनको आप इस तरह बैठ के मौजू बताएं कि मैं चाहता हूँ इस मौजू पर आप ये नात के ये नोहा लिख दें, ये मंजर हो, ये मंजर हो, ये मंजर हो। 7 से 8 मिनट में आप पूरा कलाम ले लें उनसे, यानी इस तरह, यानी जितना टाइम आपको कहीं से देख के लिखने में लगे ना, वो उतना टाइम सोच के लिख देते थे। ये आंखों देखी बात है, एक मरतबा नहीं, और ये सारी जिंदगी उनका यही रहा, यानी सारी जिंदगी। और हमें बैठना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, 10 मरतबा सोचना और पड़ता अशार है। तो मतलब जी, तो जितनी स्पीड से मैं देख के नहीं लिख सकता, उतनी स्पीड से वो इस तरह लिख लेते थे। और यानी 1000 कलाम लिखे उन्होंने, 1000 सैकड़ों, और वही बात करते हुए बहुत लुकनत थी उनमें, बहुत, एक जुमला भी मुकम्मल करते थे तो जब कलाम पढ़ते थे, नात हम या नोहा पढ़ते थे, वो एक दफ़ा भी नहीं अटकते थे, पढ़ते थे। ये हमने खुद देखा हुआ है, जी जी जी, तो क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कोई सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं।